Hello students, very welcome to all of you. Now today we are going to move on to the next part of the topic complex numbers, that is type 9, polar form and exponential form of a complex number. Now recollect students, last time we have done modulus and argument of a complex number. उसी के आगे continuation है ये part. Please note down the heading type 9, polar form and exponential form of a complex number. Now first I will explain you the concept कि exactly polar form और exponential form होता क्या है, उसके बाद हम उसके ऊपर problems solve करेंगे. So write down under this, लिखिए आप, let z is equal to x plus iota y be represented by a point P x comma y. ये लिखिए आप. So z is equal to x plus iota y is a complex number which will be represented by a point P x comma y in the complex plane. Now recollect what we have done last time. I will explain you. ये हमारा complex plane है. This is x axis. So this is x o x dash. ये हमारा y axis है, y o y dash. X axis is called as real axis and y axis is called as imaginary axis. So z is equal to x plus iota y is represented by the point P x comma y. So ये point P है हमारा x comma y. Now let us join these 2 points and let us draw a perpendicular from point P which meets x axis at point M. So ये जो last time का diagram है वही same diagram हम use कर रहे हैं. Now length OM is nothing but x, length PM is nothing but y, and length OP is nothing but r, which is denoted by the notation mod z. So students, length OP is denoted by the notation r, which is given by mod z. हमने किया last time modulus, that is nothing but length OP, and this OP makes an angle theta with positive direction of x-axis. So this theta is called as nothing but argument or amplitude, and r जो notation है, which is modulus of z. ठीक है? So please draw this diagram for your reference. Now from this triangle OMP, तो आप लिखिए, from the triangle OMP, cos theta. So students, what is cos theta? From the figure, from this figure, cos theta is nothing but x upon r, and sin theta is nothing but y upon r. We know we have done it last time. Cos theta is adjacent upon hypotenuse and sin theta is opposite upon hypotenuse होता है. ठीक है? तो therefore जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से x क्या मिलेगा? x will be equal to r cos theta, and from here y will be equal to r sin theta, where what is r? r is nothing but modulus. तो आपके रेफरेंस के लिए वो भी लिख लो चाहिए तो, that you write down, where r हम कैसे फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स? तो रिकलेक्ट, r is nothing but अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर. ऐसे हम फाइंड करेंगे.
and theta is nothing but the argument, and theta is called as argument, or it is also known as एम्पलीट्यूड भी बोलते हैं इसको। ओके, तो अभी हम क्या करने वाले स्टूडेंट्स कि ये जो x और y का वैल्यू है, दिस इज विच इज x इज इक्वल टू r cos थीटा एंड y इज इक्वल टू r sin थीटा, दिस we will substitute over here in the complex number। ठीक है, so write down what will this complex number become। so therefore z is equal to x will be replaced by r cos theta plus iota times of y will be replaced by r sin theta। now you can see from both the terms we can take r common, so therefore z is equal to r common ले लिया तो ब्रैकेट में क्या बचेगा cos theta plus iota sin theta। now put a square bracket on this, तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है ना z is equal to r bracket cos theta plus iota sin theta, this is called as polar form। इसको हम polar form बोलते हैं, polar form of complex number। now recollect students polar form क्या होता है, so we have done it in trigonometry, you may or may not done it, ठीक है, but ये 11th standard में ये होता है polar form। now when the point p x comma y, when it is represented by p r comma theta, x comma y के जगह पे जब हम r theta कोऑर्डिनेट यूज करते हैं तो दैट इज कॉल्ड एज द पोलर फॉर्म। जो x comma y है, now इतना तो आपको पता होगा स्टूडेंट, x comma y, for your reference I'll write down over here x comma y, this is called as कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, इसको हम बोलते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। प्लीज नोट डाउन फॉर योर रेफरेंस। एंड r theta, r comma theta, ठीक है, is it visible to you, r comma theta, they are called as polar coordinates। it's a very important concept of trigonometry, लिख लीजिए x comma y Cartesian coordinates, r theta they are called as the polar coordinates। so polar form means it is in form of r and theta, and Cartesian form means it is in form of x and y, ऐसा होता है, इसीलिए xy can be also written as r theta, where what is r, so r is nothing but the modulus mod z and theta is the angle made, amplitude या argument होता है, ठीक है, प्लीज नोट डाउन दिस। तो ये पोलर फॉर्म है। now similarly we have another form that is called as exponential form। तो इसी का एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखिए, इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगा, therefore z is equal to r remaining same, cos theta plus iota sin theta is nothing but e raised to iota theta। so this form of the complex number r into e raised to iota theta is called as the exponential form। exponential form of a complex number। write down, then I'll rub this off। इतना लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलो, तो लेट्स मूव अहेड, इसको मैं रब कर देता हूँ बिकॉज आई वांट टू राइट डाउन फ्यू मोर डिटेल्स, फ्यू मोर थिंग्स आर टू बी रिटर्न। ठीक है, नाउ इफ यू ऑब्जर्व ओवर हियर, यहाँ पे हमने क्या किया, cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, दिस इज रिटर्न एज e रेज टू आयोटा थीटा। ठीक है, तो आपके रेफरेंस के लिए लिख लीजिए, राइट डाउन ऑन द नेक्स्ट लाइन, वेयर e रेज टू आयोटा थीटा is nothing but cos theta plus iota
साइन थीटा, ये होता है। So now what we can observe students, z is equal to x plus iota y कॉम्प्लेक्स नंबर था, तो उसका पोलर फॉर्म क्या है, z is equal to r ब्रैकेट cos थीटा प्लस iota sin थीटा, और उसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या है, तो z is equal to r into e raised to iota theta. They are all z. So what do we conclude from here? Write down. Next step. Therefore, z is equal to x plus iota y is a complex number. This is equal to r bracket cos theta plus iota sin theta. ये हमारा पोलर फॉर्म है, and this is equal to r into e raised to iota theta. ये वाला हमारा exponential form है. This is our exponential form, and they are all equal, and put a box over this. Write down this. What can be done students? Problem कैसे आएंगे कि हमें कॉम्प्लेक्स नंबर दिया रहेगा, we have to find out the polar form, or else complex number will be given, we have to find out the exponential form. Converting exponential form दिया रहेगा, find out the polar form. Polar form दिया रहेगा, we can find out the complex number. एक दूसरे से रिलेटेड है, तो अगर कॉम्प्लेक्स नंबर मालूम है तो पोलर फॉर्म फाइंड कर सकते हैं, पोलर फॉर्म मालूम है तो एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल नोन टू अस, यू कैन फाइंड आउट पोलर, पोलर नोन टू अस, यू कैन फाइंड आउट कॉम्प्लेक्स नंबर. बट इसमें दो ही चीजें इंपॉर्टेंट है, वी नीड आर एंड थीटा. तो लास्ट टाइम हमने ऑलरेडी किया है. हाउ टू, आर मीन्स नथिंग बट इट इज द मॉड्यूलस, एंड थीटा मीन्स इट इज नथिंग बट द आर्ग्यूमेंट. तो आर एंड थीटा ये दो बेसिक रिक्वायरमेंट है प्रॉब्लम में. So please make a note, then we'll move on to the problems. Okay students, so please write down exercise question number 4. This is of exercise number 1.3 है ये हमारा. जैसे लिखिए आप exercise 1.3. क्वेश्चन 4 का हेडिंग लिखिए. Express the following complex number in polar and the exponential form, and the given complex number is -1 plus √3 iota. तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है स्टूडेंट्स? वी नीड टू फाइंड आउट, बेसिक रिक्वायरमेंट इज आर एंड थीटा. तो चलिए सॉल्यूशन राइट डाउन फॉर द फर्स्ट प्रॉब्लम. लेट z is equal to -1 plus √3 iota. तो हियर अभी आप कंपेयर कीजिए इस कॉम्प्लेक्स नंबर को x प्लस आयोटा y से. तो हियर x का वैल्यू इज -1 एंड y का वैल्यू इज √3. So therefore px comma y which is equivalent to -1 comma √3. X is negative and y is positive. So x negative, y positive. Point P lies in, point P lies in second quadrant. अभी सबसे पहले में क्या फाइंड करना है? तो वी हैव टू फाइंड आउट द मॉड्यूलस, r का वैल्यू. राइट डाउन. देयरफॉर r is equal to under root of x square plus y square. So that is equal to under root of -1 का स्क्वायर प्लस 1, √3 का स्क्वायर इज 3 एंड √4 हो जाएगा ये. तो √4 इज नथिंग बट इक्वल टू 2. नाउ वी विल फाइंड आउट tan थीटा. तो नाउ स्टूडेंट्स tan थीटा का क्या फॉर्मूला है? तो tan थीटा इज नथिंग बट y by x. So that is nothing but equal to y by x. So √3 upon -1, that is nothing but -√3. Therefore tan theta is further equal to, अभी tan फंक्शन √3 कौन से एंगल पे होता है?
So it is nothing but tan pi by 3. tan 60 डिग्री का वैल्यू √3 होता है. Now we are going to use allied angle formula. Point देखो कौन से quadrant में है. Point P lies in second quadrant. Now see in the notebook, if point P lies in the second quadrant, तो हमें कौन सा formula use करना है. तो tan of pi minus theta is equal to minus tan theta होता है. ये अलाइड एंगल फॉर्मूला हमें यूज करना है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, थीटा को फाइंड करने के लिए. Therefore tan theta is further equal to, so this will be written as what, tan of pi minus pi by 3 हो जाएगा. देखो minus tan theta can be written as tan of pi minus theta. recollect last time का लेक्चर. I hope आपको रिवाइज करके नेक्स्ट लेक्चर में आना है. हाँ, so this can be written this way. So therefore tan theta becomes equal to what, tan of pi minus pi by 3 को सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 pi by 3 आएगा. अब जब हम दोनों को कंपेयर करेंगे, when we will compare what is our value of theta, तो theta is nothing but 2 pi by 3. तो हमें r मिल गया, अभी हमें theta मिल गया. Now what do we want? We want the polar form of a complex number ना. तो polar form लिखे, उसके पहले आप ये थीटा तक का प्रोसीजर लिख लो. प्लीज राइट डाउन. ठीक है, तो राइट डाउन. आफ्टर दिस राइट डाउन ऑन द नेक्स्ट लाइन लिखिए पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज, क्या फॉर्मूला है पोलर फॉर्म का, z इज इक्वल टू r ब्रैकेट cos थीटा प्लस अयोटा sin थीटा. तो लिखो z इज इक्वल टू r ब्रैकेट cos थीटा प्लस अयोटा sin थीटा. दैट इज इक्वल टू, अभी कुछ नहीं करना है हमें, जो r और थीटा का वैल्यू है, ये r का वैल्यू और थीटा का वैल्यू हमें यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है. वेरी सिंपल प्रोसीजर. तो व्हाट इज r का वैल्यू स्टूडेंट्स? r का वैल्यू है 2 ब्रैकेट cos थीटा, थीटा इज 2 pi by 3, तो cos 2 pi by 3 प्लस अयोटा sin 2 pi by 3 एंड क्लोज द ब्रैकेट. और यही हमारा पोलर फॉर्म है. प्लीज नोट डाउन. नेक्स्ट क्या चाहिए हमें? एक्सपोनेंशियल फॉर्म. So write down on the next line, exponential form of complex number is z is equal to r into e raised to iota theta. ये देखिए यहाँ पे बस r और थीटा का वैल्यू डालो. तो r का वैल्यू है 2 इंटू ई रेज टू अयोटा थीटा. थीटा इज 2 pi by 3. ये हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म है. So let's underline this. This is our polar form and this is our exponential form of the complex number. That's it. Problem is over. तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट तो क्या है? r and theta itself is important. बाकी तो ये फॉर्मूला यूज करके उसमें सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है. तो मॉडुलस एंड एम्पलीट्यूड प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल. So if any complex number is given, we can convert that complex number to the polar form and to the exponential form. And vice versa way, polar form अगर exponential form दिया है तो वहां से polar form लिख सकते हैं. पोलर फॉर्म मालूम है तो वहां से हम कॉम्प्लेक्स नंबर भी निकाल सकते हैं. वो भी प्रोसीजर करना है हमें. Those examples also are to be done, but before that, note down this. Next example, question 4, example number 3 लिखिए. Only -1 is given. Now, what is z? Complex number है, so it can be written as -1 plus 0 iota. तो x का वैल्यू -1 है and y का वैल्यू is 0. So the point P is what, students?
point P is -1, 0. Now this point P -1, 0, P lies on negative x-axis. नेगेटिव एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है. तो व्हाट इज आर? आर इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. तो ये 1 + 0. तो आर का वैल्यू है √1 1 ही होता है. नाउ रिकलेक्ट, ये जो पॉइंट पी है आपके रेफरेंस के लिए ड्रॉ कर देता हूँ. सी पॉइंट पी इज ओवर हियर एंड दिस इज पॉइंट पी -1, 0. तो दिस एंगल, ये जो एंगल है, दिस इज नथिंग बट 180 डिग्री, और यू कैन राइट डाउन इट एज पाई रेडियन. तो बस थीटा डायरेक्टली मिल जाएगा, वी वोंट डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. सो देयरफॉर you can just write down theta is equal to pi radian. Generally we will write down the angles in form of radians. डिग्रीज में भी लिखते हैं कभी कभी, बट रेडियंस प्रेफर करेंगे. तो बस r मिल गया, थीटा मिल गया. नाउ लेट अस राइट डाउन द पोलर फॉर्म एंड द एक्सपोनेंशियल फॉर्म वन बाय वन. तो लिखिए नेक्स्ट लाइन पे, द पोलर फॉर्म इज, बस इतना लिखा तो भी चलेगा. पोलर फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर इज नहीं लिखा, जस्ट राइट डाउन पोलर फॉर्म इज z इज इक्वल टू r ब्रैकेट cos थीटा प्लस अयोटा sin थीटा. सब्स्टिट्यूट करो r और थीटा का वैल्यू. तो r का वैल्यू 1 है. ब्रैकेट में लेट्स राइट डाउन दिस एज cos पाई प्लस अयोटा sin पाई, क्लोज द ब्रैकेट. ये हो गया पोलर फॉर्म. नेक्स्ट लाइन पे लिखिए द एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज, व्हाट इज द एक्सपोनेंशियल फॉर्म का फॉर्मूला, और व्हाट इज इट इज गिवन बाय z इज इक्वल टू r इनटू e रेज टू अयोटा थीटा. so that is nothing but equal to r का वैल्यू है 1 into e raised to iota pi, which is can be written as e raised to iota into pi. ये हमारा फाइनल आंसर है. That's it. Problem is over. Note down. अभी इसी का उल्टा प्रोसीजर एग्जैक्टली, कि अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म दिया है तो उसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, और पोलर फॉर्म दिया है तो कॉम्प्लेक्स नंबर भी हमें मिलेगा. तो इफ इट इज गिवन e रेज़ टू अयोटा पाई, और अगर बोला आपको कन्वर्ट इट टू द पोलर फॉर्म, तो हम क्या करेंगे, हम कंपेयर करेंगे. तो r का वैल्यू 1, थीटा का वैल्यू पाई, वी विल सब्स्टिट्यूट इट ओवर हियर. तो देखो प्लीज पे अटेंशन, ये करना है नेक्स्ट आगे जाके आपको. तो r का वैल्यू 1 डालेंगे और थीटा का वैल्यू पाई डालेंगे पोलर फॉर्म में. तो देखो क्या मिलेगा, r का वैल्यू 1 डाला, थीटा का वैल्यू पाई डाला. तो वी हैव गॉट दिस पोलर फॉर्म. अभी पोलर फॉर्म से कॉम्प्लेक्स नंबर में कैसे कन्वर्ट होगा, तो रिकलेक्ट ट्रिग्नोमेट्री पेपर 1 में. साइन पाई का वैल्यू होता है 0 और कॉस पाई का वैल्यू होता है -1. तो आइटा इंटू 0, ये देखो आइटा इंटू 0 एंड कॉस पाई का वैल्यू -1 है. तो z इज इक्वल टू -1 प्लस 0 अयोटा, एंड दैट इज नथिंग बट -1. वी गेट द कॉम्प्लेक्स नंबर. सो दे आर इंटर रिलेटेड. अगर कॉम्प्लेक्स नंबर पता है तो पोलर फॉर्म मिलेगा, पोलर फॉर्म पता है तो एक्सपोनेंशियल मिलेगा, एक्सपोनेंशियल पता है तो पोलर मिलेगा, पोलर पता है तो कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा. ओके, प्लीज नोट डाउन, देन विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट एग्जांपल. प्लीज नोट डाउन क्वेश्चन 4 का ये 6th एग्जांपल है. अच्छा, नाउ सिंस आई वांट टू ओनली एकोमोडेट इन दिस मच स्पेस, ये मैंने आपके सामने जानबूझ के रखा हुआ है क्योंकि ये फॉर्मूलेज हम इनिशियली यूज कर रहे हैं. तो आई विल थोड़ा सा मैं डायरेक्टली लिखूंगा यहाँ पे. ओके, अब देखो सबसे पहले हमें ये जो z दिया है, दिस इज टू बी कन्वर्टेड इन फॉर्म ऑफ x प्लस अयोटा इंटू वाई. उस फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले लेट अस एक्सपांड 2 माइनस अयोटा द होल स्क्वायर. रिकलेक्ट, एक्सप्रेसिंग द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर इन फॉर्म ऑफ a प्लस अयोटा b, है ना. ये हमने वेरी फर्स्ट लेक्चर वी हैव डन इट. ठीक है, तो उसमें कन्वर्ट करना है. तो पहले सबसे पहले आप इसको एक्सपांड कीजिए. मैं एज अ रफ वर्क आपको करके बता देता हूँ. तो राइट डाउन
इसका सिंप्लीफिकेशन 2 माइनस आयोटा द होल स्क्वायर व्हेन विल एक्सपांड दिस, क्या मिलेगा? तो 2 स्क्वायर a माइनस b द होल स्क्वायर, तो 4 माइनस 4 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर. नाउ रिकलेक्ट स्टूडेंट्स, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, तो व्हाट विल दिस बिकम? 4 माइनस 4 आयोटा -1, तो 4 माइनस 1 ये हो जाएगा 3 माइनस 4 आयोटा. मीन्स जब हमने 2 माइनस आयोटा द होल स्क्वायर को सिंप्लीफाई किया, एक्सपांड किया, तो क्या हो गया? 3 माइनस 4 आयोटा बन गया वो. चलो राइट डाउन फॉर योर रेफरेंस. तो हम क्या करेंगे? दिस विल बी फर्दर इक्वल टू 1 प्लस 7 आयोटा रिमेनिंग सेम अपॉन 2 माइनस आयोटा द होल स्क्वायर, क्या बन गया? 3 माइनस 4 आयोटा बन गया. राइट डाउन. ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया. बिकॉज आई एम रनिंग शॉर्ट ऑफ स्पेस, आई हैव डन इट डायरेक्टली. एंड एनीवेज आप भी थोड़ा सा डायरेक्टली कर सकते हो, इतना अलाउड है. आप डायरेक्टली 3 माइनस 4 आयोटा लिखो, नो प्रॉब्लम. नाउ इफ दिस प्रॉब्लम इज आस्क्ड इन एग्जाम, इट विल कैरी 3 मार्क्स. चलिए लिख लीजिए ये प्रोसीजर, फिर हम आगे बढ़ेंगे. ठीक है. So what I'll do is I will rub this off now. I hope everyone must have written. Just show me the thumbs up. Yes. Okay. Fine. सबका लिख के हो गया. So now what I'll do is I'll rub this off. So ये working हो गया. Now recollect, it is division of two complex numbers. तो जब भी डिनोमिनेटर में कोई कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, हम उसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं. तो 3 माइनस 4 आयोटा का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट इज नथिंग बट 3 प्लस 4 आयोटा मल्टीप्लाई एज वेल एज डिवाइड. अभी इसको हमें सिंप्लीफाई करना है स्टूडेंट्स. तो देयरफॉर z इज फर्दर इक्वल टू, चलिए न्यूमरेटर में आप दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई कीजिए. तो 1 into 3 is 3, 3 plus 4 iota plus 7 3s are 21 iota, 7 4s are 28 iota into iota is iota square. तो देखो 7 iota into 4 iota करोगे तो it will be 28 iota square. But as we all know, iota square का value होता है -1. तो 28 इंटू -1 तो ये हो जाएगा -28. है थोड़ा मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, एज आई सेड, अपॉन a माइनस बी इंटू a प्लस बी. तो 3 का स्क्वायर इज 9 माइनस 4 का स्क्वायर इज 16 एंड आयोटा स्क्वायर का वैल्यू है -1. ठीक है ना. ये भी वर्किंग चाहिए तो बता देता हूँ. देखो 3 माइनस 4 आयोटा इंटू 3 प्लस 4 आयोटा, दिस इज 9 माइनस 16 आयोटा स्क्वायर, a माइनस बी इंटू a प्लस बी, और आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 डाल दिया. तो इनफैक्ट दिस इज नथिंग बट व्हाट 9 प्लस 16. तो ये जो डिनोमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर 25 हो जाएगा. ठीक है. चलो लिख लो आप. एट द सेम टाइम आई विल सिंप्लीफाई द न्यूमरेटर. 3 माइनस 28 इज -25 plus 4 iota plus 21 iota is plus 25 iota upon 25. अब 25 कॉमन आ जाएगा न्यूमरेटर में, तो हमारे पास क्या बचेगा? इट विल बी -1 प्लस आयोटा. ये हमारा z है, सिंप्लीफाइड फॉर्म है. ओके, प्लीज नोट डाउन टिल हियर, देन विल मूव अहेड. अभी हम क्या करेंगे? लेट्स कंपेयर दिस -1 प्लस आयोटा विद x प्लस आयोटा y. तो राइट डाउन, आपके रेफरेंस के लिए लिखिए. हियर x का वैल्यू इज -1 एंड y का वैल्यू इज +1. इसको हमें x प्लस आयोटा y से कंपेयर करना है. तो देयरफॉर पॉइंट P x, y which is equivalent to point P -1, 1. Now this point P -1, 1 lies in second quadrant. So point P lies in second
क्वाड्रेंट। अभी हमें क्या चाहिए स्टूडेंट्स, वी वांट द पोलर फॉर्म एंड द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो उसके लिए हमें क्या लगने वाला है, r and theta। Therefore r is equal to under root of x square plus y square, that is equal to under root of, ये दोनों का स्क्वायर करना है तो ये 1 ये भी 1, तो r का वैल्यू है √2। नाउ थीटा, so now tan theta is what, tan theta is y by x, so y divided by x, so 1 upon -1 is -1, माइनस साइन रिमेनिंग सेम। अब tan 1 कौन से एंगल पे होता है, तो tan π/4, tan 45। now we'll be using allied angle formula, so tan theta is further equal to, how do we write down this, so this will be written as tan of pi minus π/4 लिखेंगे। why recollect students, point P is in the second quadrant, और सेकेंड क्वाड्रेंट का क्या फॉर्मूला है, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, tan ऑफ पाई माइनस थीटा इक्वल टू माइनस tan थीटा। ये फॉर्मूला यूज करना होता है जब पॉइंट सेकेंड क्वाड्रेंट में रहता है। दिस इज अलाइड एंगल फॉर्मूला, इट इज कॉल्ड एज। तो ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई किया, तो दिस इज फर्दर इक्वल टू व्हाट, दिस इज फर्दर बिकम tan 3π/4 हो जाएगा। देखो r और थीटा के जो प्रॉब्लम्स है वो आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, तभी ही आप इस पार्ट को सॉल्व कर पाएंगे। नाउ व्हेन वी कंपेयर, तो एट दैट टाइम थीटा का वैल्यू इज व्हाट, तो 3π/4। तो r मिल गया, थीटा मिल गया, बस क्या करना है, r और थीटा का वैल्यू डालो, पोलर फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फॉर्म मिल जाएगा आपको। तो राइट डाउन, पोलर फॉर्म इज, लिखिए polar form is z is equal to, सब्स्टिट्यूट करो, r का वैल्यू √2 ब्रैकेट cos थीटा, तो cos 3π/4 प्लस अयोटा sin 3π/4। r और थीटा का वैल्यू डाल दिया, ये हमारा पोलर फॉर्म हो गया। एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज, एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज z इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला है, r इंटू ई रेज टू अयोटा थीटा, तो r इज नथिंग बट √2 इंटू ई रेज टू अयोटा थीटा। हो गया, प्रॉब्लम इज ओवर। बिकॉज आई वॉज रनिंग शॉर्ट ऑफ स्पेस, तो मैंने फॉर्मूलेस लिखे नहीं है। ये पोलर फॉर्म का फॉर्मूला आप एग्जाम में लिख देना, प्रीवियस टू एग्जाम्पल्स में मैंने लिखा था, और ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म का फॉर्मूला लिख देना। ओके, प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस। So please remember, any complex number given should be in form of x plus iota y। तो ऐसा कुछ दिया रहेगा तो पहले आपको उसको सिंप्लीफाई करना रहेगा, बट प्लीज ध्यान रखिए कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा इसमें कुछ मिस्टेक नहीं होना चाहिए, अदरवाइज दिस प्रोसीजर गोज रॉन्ग। ठीक है, प्लीज मेक अ नोट। फिर हम इसके बाद उल्टा करेंगे, मीन्स अभी हमें पोलर फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फॉर्म दिया रहेगा, हम वहां से कॉम्प्लेक्स नंबर निकालेंगे। ओके, प्लीज राइट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, तो एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 5 लिखिए। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन फॉर्म ऑफ x प्लस अयोटा y। दिस इज गिवन टू अस। फिफ्थ का सेकंड एग्जांपल है, √2 ब्रैकेट cos 7π/4 प्लस अयोटा इंटू साइन 7π/4। नाउ चेक, ये कौन सा फॉर्म दिया स्टूडेंट्स हमें, तो वी हैव बीन गिवन द पोलर फॉर्म, और पोलर फॉर्म को हमें कॉम्प्लेक्स नंबर में एक्सप्रेस करना है। तो राइट डाउन सॉल्यूशन फॉर द प्रॉब्लम, लिखिए, ऐसा आप लिखिए, लेट दिस बी इक्वल टू z, लेट z बी इक्वल टू √2 ब्रैकेट cos 7π/4 प्लस अयोटा इंटू साइन 7π/4।
and if you want, number this as equation 1. ठीक है, अभी स्टूडेंट्स हमें क्या करना पड़ेगा, cos 7 पाई बाय 4 और sin 7 पाई बाय 4 का वैल्यू फाइंड करना है, तो वो हम अलग से निकाल लेते हैं, एंड दैट वी हैव डन इट इन ट्रिग्नोमेट्री. राइट डाउन बाय यूजिंग, ऐसा लिखो आप, बाय यूजिंग अलाइड एंगल फॉर्मूले. अलाइड एंगल फॉर्मूले यूज करने हैं, हमने ट्रिग्नोमेट्री में इसको सीखा है. ओके, इफ यू हैव नॉट डन यू विल बी लर्निंग इट, डोंट वरी, अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ. अभी किसका वैल्यू फाइंड करना है, सबसे पहले cos 7 पाई बाय 4 का. तो प्लीज पे अटेंशन, cos ऑफ 7 पाई बाय 4. नाउ जब हम अलाइड एंगल फॉर्मूलेज यूज करते हैं ना स्टूडेंट्स, तो एट दैट टाइम बाय ट्रायल एंड एरर बेसिस cos पाई प्लस माइनस थीटा का फॉर्मूला, और एल्स वी हैव टू यूज cos 2 पाई प्लस माइनस थीटा का फॉर्मूला यूज करना पड़ता है. ठीक है, नाउ इट डिपेंड्स ऑन व्हाट एंगल इज गिवन ओवर हियर. उसके ऊपर फिर डिसाइड होगा कि पाई प्लस माइनस थीटा का फॉर्मूला यूज करना है कि cos 2 पाई प्लस माइनस थीटा का फॉर्मूला यूज करना है, एंड सेम इज एप्लीकेबल फॉर साइन फंक्शन आल्सो. ठीक है, नाउ पे अटेंशन. अभी आप देखिए 7 पाई बाय 4, लेट मी एक्सप्लेन यू इन डिटेल. 7 पाई बाय 4 को कैन आई राइट डाउन पाई प्लस माइनस सम एंगल. अब वो प्रैक्टिस से मालूम पड़ेगा, कैसे मालूम चलेगा, तो विल कम टू नो बाय प्रैक्टिस. अभी सपोज पाई प्लस पाई बाय 4 लिखा मैंने, अभी पाई प्लस पाई बाय 4 का एलसीएम लिया तो क्या आ जाएगा, 5 पाई बाय 4 आ जाएगा. नो, आई एम नॉट गेटिंग 7. अभी सपोज सब्ट्रैक्ट किया तो पाई माइनस पाई बाय 4 क्या आ जाएगा, 3 पाई बाय 4 आ जाएगा. तो दे आर नॉट इक्वल, तो पाई वर्क नहीं हो रहा है, पाई प्लस माइनस थीटा वर्क नहीं हो रहा है. तो फिर हम क्या करेंगे, 2 पाई के साथ जाएंगे. नाउ व्हेन आई वर्क आउट विद 2 पाई, तो 2 पाई माइनस पाई बाय 4, इसका एलसीएम लेके देखो आप, तो 2 पाई इंटू 4 इज 8 पाई, 8 पाई माइनस पाई इज 7 पाई बाय 4 आ गया ना. तो दिस इज हाउ यू डू इट बाय ट्रायल एंड एरर बेसिस. अगर आपने ऑलरेडी किया है ये ट्रिग्नोमेट्री में, तो ऐसे ट्रायल एरर बेसिस में आपको देख के मालूम पड़ जाएगा. अगर आपने नहीं किया है तो फॉर दोज हु हैव नॉट डन, उनके लिए मैंने ये एक्सप्लेनेशन दिया है. ठीक है, तो चलिए लिखिए. तो cos ऑफ 7 पाई बाय 4 will be written as 2 pi minus pi by 4. Now see, 2 pi है, तो 2 pi है तो फंक्शन does not change. तो cos ऑफ, अच्छा चलो पहले अलाइड एंगल फॉर्मूला भी लिख देता हूँ मैं आपके रेफरेंस के लिए. देखो फॉर्मूला क्या बोलता है, cos ऑफ 2 pi minus थीटा इक्वल टू cos थीटा होता है. दिस इज द फॉर्मूला. 2 pi है तो cos फंक्शन रिमेनिंग सेम, 2 pi minus theta is fourth. So what I was saying is students, 2 pi minus theta फोर्थ क्वाड्रेंट में है, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में cos फंक्शन पॉजिटिव होता है. वो आपको याद रखना है, ट्रिग्नोमेट्री में हमने किया है. तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला cos ऑफ 2 pi minus pi by 4 will be nothing but cos pi by 4 हो जाएगा. एंड व्हाट इज वैल्यू ऑफ cos pi by 4, तो cos 45 डिग्री का वैल्यू 1 by √2 होता है. चलो प्लीज नोट डाउन दिस, ये वर्किंग आप नोट डाउन कर लीजिए. तो दिस इज ट्रायल एंड एरर बेसिस, हाउ यू आइडेंटिफाई कि कौन सा एंगल सिलेक्ट करना है या कैसे करना है, उसके कॉम्बिनेशन चाहिए. एंड प्लीज नोट डाउन दिस अलाइड एंगल फॉर्मूला आल्सो. सिमिलरली वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ sin 7 pi by 4. तो साइन फंक्शन रिमेनिंग सेम, 7 पाई बाय 4 को सेम लिखेंगे, 2 पाई माइनस पाई बाय 4. अभी इसके ऊपर भी एक अलाइड एंगल फॉर्मूला है. So that formula says that sine of 2 pi minus theta is equal to minus sin theta होता है. 2 pi है तो साइन फंक्शन रिमेनिंग सेम,
2 पाई माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन फंक्शन इज नेगेटिव, तो साइन ऑफ 2 पाई माइनस पाई बाय 4 विल बी माइनस साइन पाई बाय 4 which will be minus 1 by root 2. So if you want, you number this as 2 and this as expression 3. With the reason, ये अलाइड एंगल फॉर्मूलेज भी लिख लो आप आपके रेफरेंस के लिए, और इनको आपको याद रखना है। अभी हम क्या करेंगे, cos 7 पाई बाय 4 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे, और sin 7 पाई बाय 4 का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। So write down, therefore z is further equal to root 2 remaining same. What will this become? Cos 7 pi by 4 का वैल्यू क्या है? 1 by root 2 plus iota into sin 7 pi by 4 का वैल्यू है minus 1 by root 2. Close the bracket. Now see, we can take 1 by root 2 common. So this is further equal to root 2 remaining same, 1 by root 2 common ले लिया, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? 1 माइनस आयोटा, ठीक है ना, 1 इंटू आयोटा प्लस ऑफ माइनस माइनस हो गया। अब क्या होगा, ये रूट 2 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। तो व्हाट इज द कॉम्प्लेक्स नंबर स्टूडेंट्स? तो द कॉम्प्लेक्स नंबर z इज नथिंग बट 1 माइनस आयोटा। दैट्स इट, प्रॉब्लम इज ओवर। तो पोलर फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर वाज गिवन, वी हैव फाउंड आउट द कॉम्प्लेक्स नंबर। सिमिलरली कॉम्प्लेक्स नंबर अगर दिया है और पोलर फॉर्म फाइंड करना है, तो ये पोलर फॉर्म मिलेगा आपको। बोथ द वेज इट इज पॉसिबल, ठीक। प्लीज नोट डाउन, देन विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट एग्जांपल। ओके स्टूडेंट्स, प्लीज राइट डाउन नेक्स्ट एग्जांपल। क्वेश्चन 5 का थर्ड एग्जांपल है। 7 ब्रैकेट cos ऑफ माइनस 5 पाई बाय 6 प्लस आयोटा इंटू साइन ऑफ माइनस 5 पाई बाय 6। अभी यहाँ पे थोड़ा सा स्टार्टिंग में प्रोसीजर डिफरेंट है। Now, first of all, we have to use trigonometric functions of negative angle. So, to save space, आप ऐसा लिख लो z is equal to, इसी को z लिख लो आप, let z equal to this। अभी दो फॉर्मूले है वो भी मैं लिख के देता हूँ ट्रिग्नोमेट्री में। दिस इज कम्प्लीटली रिलेटेड टू ट्रिग्नोमेट्री ओनली है स्टूडेंट्स। लिखिए, फॉर्मूले लिख लीजिए आप आपके रेफरेंस के लिए। cos ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा होता है, एंड साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। दीज आर द फॉर्मुलेज ऑफ नेगेटिव एंगल्स, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ नेगेटिव एंगल्स के फॉर्मुलेज है। तो इससे z क्या हो जाएगा? z इज इक्वल टू 7 cos ऑफ माइनस थीटा इज cos थीटा, so this will become cos of 5 pi by 6 and sin of minus theta is minus sin theta होता है, so this will become minus iota into sin 5 pi by 6 हो जाएगा, and let's number this as 1, इसको 1 दे देंगे हम। तो ये दो फॉर्मूलेज आप लिख लीजिए, इसको यूज करके पहले हमने उसको फंक्शन को सिंप्लीफाई कर लिया। Then we'll move ahead. Now what we'll do, by using allied angle formulas, इसका वैल्यू फाइंड कर लेंगे। So write down, by using allied angle फॉर्मूले, तो सबसे पहले किसका वैल्यू फाइंड कर लेंगे? तो cos ऑफ 5 पाई बाय 6 का। So how will we write down 5 pi by 6 as? It is nothing but pi minus pi by 6। मैंने आपको बताया ट्रायल एंड एरर बेसिस से करोगे। pi plus pi by 6 लिया तो 7 pi by 6 हो जाएगा। तो pi minus pi by 6 is nothing but 5 pi by 6। Now what does the allied angle formula says? फॉर्मूला क्या बोलता है? cos of pi minus theta माइनस कॉस थीटा होता है। पाई है तो कॉस फंक्शन ही रहेगा। पाई माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस फंक्शन नेगेटिव होता है।
तो ये फॉर्मूला हम जब यहाँ पे अप्लाई कर देंगे तो दिस विल बिकम नथिंग बट माइनस कॉस पाई बाई 6। अब माइनस कॉस 30 डिग्री का वैल्यू डालो आप। बाय दैट टाइम लेट अस मूव ऑन टू साइन 5 पाई बाई 6। ये वैल्यू आपको लिखना है। तो साइन ऑफ पाई माइनस पाई बाई 6 हो जाएगा। अभी जो फॉर्मूला है वो बोलता है कि साइन ऑफ पाई माइनस थीटा साइन थीटा होता है। तो साइन ऑफ पाई माइनस पाई बाई 6 विल बिकम नथिंग बट साइन पाई बाई 6। तो अभी दोनों ये वैल्यूज मेरे को जल्दी से बता दो। साइन पाई बाई 6, पाई बाई 6 मीन्स 30। तो साइन 30 का वैल्यू 1/2 एंड कॉस 30 का वैल्यू √3/2। ये नेगेटिव वैल्यू, ये पॉजिटिव वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, इसको आप दे दो इक्वेशन 2 और इसको दे दो एक्सप्रेशन 3। अब ये वैल्यूज हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। Therefore z is further equal to 7 ब्रैकेट cos 5 पाई बाई 6 का वैल्यू है माइनस √3/2 माइनस अयोटा इंटू साइन 5 पाई बाई 6 का वैल्यू है 1/2। अभी हम क्या कर सकते हैं, वी कैन मल्टीप्लाई 7 ऑल्सो। हमें किस फॉर्म में लिखना है, x प्लस अयोटा y में ना, तो 7 मल्टीप्लाई कर दो अंदर। तो देयरफॉर z इज इक्वल टू व्हाट, माइनस 7√3/2 माइनस अयोटा इंटू 7/2 हो गया। एट द मैक्सिमम स्टिल इफ यू वांट टू सिंप्लीफाई x प्लस अयोटा y में लिखना है, ठीक है, यहाँ तक भी लिखा तो भी चलेगा। दैट्स इट, दिस इज अवर फाइनल आंसर। मल्टीप्लाई कर दिया। अब प्रीवियस एग्जांपल में वो कैंसिल हो रहा था इसलिए हमने 1/√2 कॉमन लिया था। अब यहाँ पे कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, एंड सिंस वी वांट टू एक्सप्रेस इट इन फॉर्म ऑफ x प्लस आइटा y, so we have done it in this manner. Okay, please note down. So write down the next question, question 5 का 5th example. Now if you observe students, this is the exponential form given. अब इस exponential form को हमें complex number में convert करना है। So first note down the question. चलिए लिखिए solution for the problem. Let z be equal to e raised to minus 4 pi by 3 into iota. This is equal to, अब देखो एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या है स्टूडेंट्स, r into e raised to iota theta. तो गिवन प्रॉब्लम को हम इससे कंपेयर करेंगे। सॉरी डाउन हियर r is equal to 1, इसका कोएफिशिएंट 1 है, एंड थीटा का वैल्यू हाउ मच इज थीटा, तो थीटा इज माइनस 4 पाई बाई 3 है। अयोटा थीटा, थीटा अयोटा कैसे भी लिखो, थीटा नेगेटिव है। अब हमें क्या करना है, we have to convert this in form of complex number. So first of all we'll have to convert this exponential form to the polar form. Sorry down, polar form is, सर लिखो आप नेक्स्ट लाइन पे, polar form is क्या है, polar form z is equal to r bracket cos theta plus iota sin theta. So therefore z is equal to r का वैल्यू 1 ब्रैकेट में cos थीटा cos ऑफ माइनस 4 पाई बाई 3 प्लस अयोटा इंटू साइन माइनस 4 पाई बाई 3 हो जाएगा। क्लोज द ब्रैकेट, नंबर दिस एज एक्सप्रेशन 1। बस अब क्या करना है, ये प्रीवियस एग्जांपल था वैसा ही हो गया, cos माइनस 4 पाई बाई 3 एंड cos ऑफ साइन ऑफ माइनस 4 पाई बाई 3। तो cos ऑफ माइनस थीटा इज cos थीटा एंड साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा। तो लिखो z इज इक्वल टू, ये सिंप्लीफाई होके क्या हो जाएगा, cos 4 पाई बाई 3, तो इनफैक्ट इसको नहीं, इसको इक्वेशन 1 दे देंगे हम, माइनस अयोटा इंटू साइन 4 पाई बाई 3।
नंबर दिस एज 1, इसको 1 मत दे दो क्योंकि उसको हम सिंप्लीफाई करेंगे ना। तो प्रीवियस आपको वो जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ नेगेटिव एंगल का रिजल्ट है वो मैंने आपको ऑलरेडी लिख के दिया है प्रीवियस एग्जांपल। ठीक है, सी आई एम फॉलोइंग अ प्रॉपर ऑर्डर इन विच द प्रॉब्लम शुड बी डन। एक्सरसाइज में कौन सा भी प्रॉब्लम कहीं पे भी दिया है। नाउ cos 4π/3 और sin 4π/3 का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो cos ऑफ 4π/3 का वैल्यू, so how will we write down 4π/3 as pi plus pi/3? एलसीएम लेंगे तो 3π plus pi 4π/3 आ जाएगा। ठीक है, नाउ cos ऑफ pi plus थीटा, अलाइड एंगल फॉर्मूला क्या बोलता है स्टूडेंट्स? cos ऑफ pi plus थीटा इज इक्वल टू माइनस cos थीटा होता है, तो दिस विल बिकम माइनस cos pi/3। cos 60 का वैल्यू डालो आप, cos pi/3। तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ cos 60? तो cos 60 का वैल्यू है 1/2, माइनस साइन तो रहेगा। नोट डाउन दिस रीजन, ये मैं रब कर दूंगा बिकॉज आई नीड स्पेस टू राइट डाउन, ये रीजन आप लिख लो, राइट डाउन दिस एंड राइट डाउन द रीजन, देन आई विल रब ऑफ द रीजन। ये अलाइड एंगल फॉर्मूला है, यू कैन राइट डाउन बाय यूजिंग अलाइड एंगल फॉर्मूला और फॉर्मूले। ठीक है, नाउ लेट अस फाइंड आउट वैल्यू ऑफ sin 4π/3। so that is nothing but sin of pi plus pi/3। अब इसका अलाइड एंगल फॉर्मूला क्या बोलता है रिलेटेड टू साइन फंक्शन? दैट sin of pi plus theta is minus sin theta, so that will be nothing but minus sin pi/3 माइनस साइन रिमेनिंग सेम, sin 60 का वैल्यू √3/2 होता है। नोट डाउन। अब आपको पता है वैसे क्या करना है, cos 4π/3 का वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे और sin 4π/3 का वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। चलो राइट डाउन। ये भी रीजन है तो इसको मैं रब कर देता हूँ। तो देयरफॉर z इज फर्दर इक्वल टू व्हाट, ब्रैकेट में cos 4π/3 का वैल्यू इज -1/2 माइनस अयोटा इंटू sin 4π/3 का वैल्यू इज -√3/2। So what is the complex number z required? -1/2 plus iota into √3/2। ये हमारा फाइनल आंसर है। x प्लस अयोटा y, x प्लस अयोटा y के फॉर्म में हमने एक्सप्रेस कर दिया। प्रॉब्लम इज ओवर, प्लीज नोट डाउन। तो एक्सपोनेंशियल आपने रिलेशन देखा ही है ना, ये देखो मैंने जानबूझ के बोर्ड पे रखा है। कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने पोलार में कन्वर्ट किया, पोलार को हमने एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट किया, पोलार को कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट किया, एक्सपोनेंशियल को पोलार में और पोलार को कॉम्प्लेक्स नंबर में। सो दे आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर। ओके, नो डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा जरा एक्स्ट्रा प्रॉब्लम है। नाउ दीज काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स आर नॉट देयर इन द एक्सरसाइज, एक्सरसाइज में नहीं है, बट लिख लीजिए आप 3 into e⁵ π/12 iota into 4 into e⁵ π/12 iota। Now we have to express this in form of x plus iota y। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये है दिस इज गिवन इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब दोनों को एक्सपोनेंशियल फॉर्म लगाएंगे तो प्रॉब्लम लेंदियर हो जाएगा। तो लेट अस सिंप्लीफाई बाय मल्टीप्लाइंग दिस। चलो पहले आप क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी डू, वी मल्टीप्लाई देम। तो देखिए सॉल्यूशन z इज इक्वल टू, लेट्स मल्टीप्लाई देम, तो ये हो जाएगा 12 इंटू ई रेज टू लॉज ऑफ इंडाइसेस, बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगे, ई रेज टू 5π/12 प्लस π/12 इंटू अयोटा। लॉज ऑफ इंडाइसेस है a रेज टू m,
इंटू ए रेस टू एन इज इक्वल टू ए रेस टू एम प्लस एन होता है, तो दोनों का बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगे। तो देयरफॉर z इज फर्दर इक्वल टू व्हाट 12 इंटू ई रेस टू, ये हो जाएगा पाई बाई 2 आयोटा। 5 पाई प्लस पाई इज 6 पाई, 6 पाई बाई 12, तो वो पाई बाई 2 आयोटा हो जाएगा। अब डालो r इंटू ई रेस टू आयोटा थीटा, तो r का वैल्यू 12 है और थीटा के जगह पे पाई बाई 2 डालो एंड सॉल्व इट। तो देयरफॉर आपके सामने रखा है, देखो इसलिए मैंने आपके सामने रखा है, z इज इक्वल टू r का वैल्यू 12 है, तो सब्स्टिट्यूट इन द पोलर फॉर्म, तो 12 ब्रैकेट cos पाई बाई 2, ठीक है, कम ओवर हियर, cos पाई बाई 2 प्लस आयोटा इंटू sin पाई बाई 2 में सब्स्टिट्यूट किया। हमें क्या चाहिए, कॉम्प्लेक्स नंबर चाहिए, तो देयरफॉर z इज इक्वल टू 12 रिमेनिंग सेम, cos पाई बाई 2 का वैल्यू इज 0 प्लस आयोटा इंटू sin पाई बाई 2 का वैल्यू इज 1, so therefore the complex number is nothing but 0 plus 12 iota, which can be simply written as 12 iota. That's it, problem is over. एकदम सिंपल प्रॉब्लम है, लॉज ऑफ इंडाइसेस अप्लाई करके एक्सपोनेंशियल फॉर्म को हमने सिंप्लीफाई कर लिया, इंस्टेड ऑफ यूजिंग टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म इसको हमने कंबाइन करके सॉल्व किया, वेरी इजीली प्रॉब्लम इज ओवर। नोट डाउन, स्टार मार्क किया है, एक्स्ट्रा प्रॉब्लम है ये, और एक करेंगे, देयर इज वन मोर एक्स्ट्रा प्रॉब्लम दैट विल डू इट, बट फर्स्ट यू राइट दिस। So students, please write down the next question that you can see on your screen. ये क्वेश्चन लिख लीजिए आप, अगेन स्टार बिकॉज इट्स एन एक्स्ट्रा प्रॉब्लम, टेक्स्ट बुक में है नहीं। इनफैक्ट लेट मी टेल यू, these are two short examples of the textbook, ऐसा नहीं कि वो टेक्स्ट बुक में नहीं है, बट ऐसे वाले जो प्रॉब्लम्स है वो एक्सरसाइज में नहीं है। तो चलिए हम क्या करेंगे इसको कि लेट्स टेक दिस एज इक्वल टू z, इसको हमें कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट करना है फॉर्म में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पोलर फॉर्म है, तो पोलर फॉर्म वी विल कन्वर्ट इट टू द एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो चेक आउट, दिस इज फर्दर इक्वल टू, यहीं पे कंटिन्यू करता हूं मैं। नाउ रूट टू रिमेनिंग सेम, cos पाई बाई 12 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 12। अब क्या करो, आप इससे कंपेयर करो, चेक दिस आउट, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा इज व्हाट, e रेज़ टू आयोटा थीटा, या ये देख लो आप, z इज इक्वल टू r ब्रैकेट cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा दिया है, उसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या है, z इज इक्वल टू r इंटू e रेज़ टू आयोटा थीटा, तो r इंटू e रेज़ टू आयोटा थीटा, थीटा मतलब एंगल, थीटा इज व्हाट पाई बाई 12 अपॉन 2 इंटू e रेज़ टू आयोटा थीटा, थीटा इज 5 पाई बाई 6। बेटा ये फॉर्मूला हमने एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर लिया, पोलर फॉर्म दिया था, कंपेयर करो आप, वापस एक्सप्लेन करता हूँ। पोलर फॉर्म इज गिवन, तो r के जगह पे √2 है, थीटा के जगह पे पाई बाई 12 है, so it gets converted to the exponential form r into e raised to iota theta, both numerator as well as denominator. Now we'll use laws of indices, therefore z is equal to √2 upon 2, ठीक है, इसको मैं सेपरेट कर देता हूँ आपके रेफरेंस के लिए, √2 upon 2 को सेपरेट कर दिया, e raised to iota पाई बाई 12, ऐसे देखो पाई बाई 12 माइनस 5 पाई बाई 6 इंटू आयोटा, ऐसा हो जाएगा ये। अब ये ऐसा क्यों हो गया, आपके रेफरेंस के लिए लिख देता हूँ, द रीजन a raised to m upon a raised to n is a raised to m minus n, laws of indices which we have learnt in 7th और 8th स्टैंडर्ड में ये सिखाया जाता है हमें, तो ये हमने इसके ऊपर अप्लाई किया, दोनों का बेस सेम है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, m minus n, नोट डाउन इफ यू वांट एट द टॉप ऑफ द पेज। अभी इसको एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करो, ठीक है, आई जस्ट रब दिस ऑफ, तो z is further equal to what, √2 upon 2
सिंप्लीफाई करने के बाद 1/√2 हो जाएगा एंड e रेस टू, ठीक है, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई 2 से, तो -10, ठीक है, तो पाई -10, तो पाई -10 इज नथिंग बट -9π/12 हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय अयोटा। विल टेक एलसीएम ना, तो ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 5 2 10 10 पाई, पाई -10 पाई इज -9 पाई डिवाइडेड बाय 12। इसको हम आगे भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो दिस कैन बी रिटर्न एज, आगे दिखेगा आपको, लिखूंगा ठीक है, दिखेगा, तो 1/√2 remaining same, this will be written as e raised to -3π/4 into iota, ठीक है, राइट डाउन। तो हमने r इंटू e रेस टू अयोटा थीटा में कन्वर्ट कर लिया इसको। हमें चाहिए कॉम्प्लेक्स नंबर, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, वी हैव कन्वर्टेड दिस टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। 3 मार्क के लिए आ सकता है ये प्रॉब्लम एग्जाम में। नाउ r का वैल्यू 1/√2 है और थीटा आप कंपेयर करो -3π/4 है, तो इसमें डालेंगे हम, ठीक है। तो रिट ऑन द नेक्स्ट लाइन, पोलर फॉर्म इज z is equal to r ब्रैकेट cos थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा। आप देखते रहो लेफ्ट हैंड साइड पे, सारे फॉर्मूलेज मैंने अभी भी बोर्ड पे रखे हुए हैं, I've kept it over here only for your reference। इसको आप दे दो, नहीं इसको नहीं, नेक्स्ट वाले को हम इक्वेशन 1 दे देंगे, इसको आप कुछ मत करो, ये हमारा पोलर फॉर्म है। नाउ cos ऑफ माइनस थीटा इज cos थीटा, ठीक है, तो z 1/√2 remaining same, this will be written as cos 3π/4 minus iota sin 3π/4। इसको आप दे दो एक्सप्रेशन 1। कैसे आया, cos ऑफ माइनस थीटा cos थीटा होता है, sin ऑफ माइनस थीटा माइनस sin थीटा होता है। अभी हमें cos 3π/4 और sin 3π/4 का वैल्यू निकालना है, बट अभी हमने किया प्रीवियस एग्जाम्पल में, आप चेक करो, वैसे ही प्रोसीजर आपको अप्लाई करना है, सेम प्रोसीजर टू बी अप्लाइड। जो हमने e रेस टू -4π/3 वाला प्रॉब्लम किया ना, वैसे आपको इसको सॉल्व करना है। तो वी नीड टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ cos 3π/4। तो चलो आपके रेफरेंस के लिए कर देता हूँ, cos 3π/4, so it will be written as cos of pi minus pi/4, cos of pi minus theta is minus cos theta होता है अलाइड एंगल फॉर्मूला से, and this will be -1/√2, and similarly sin 3π/4 का वैल्यू, so that will be sin of pi minus pi/4, sin of pi minus theta sin theta होता है, and that's nothing but 1/√2। ये कैसे मिला, तो इट्स बाय अलाइड एंगल फॉर्मूले, अलाइड एंगल फॉर्मूले यूज किए हमने। अभी क्या करो, cos 3π/4 और sin 3π/4 का वैल्यू डालो आप यहाँ पे, तो दैट्स नथिंग बट इक्वल टू z इज फर्दर इक्वल टू 1/√2 रिमेनिंग सेम, ब्रैकेट में cos 3π/4 का वैल्यू है -1/√2 माइनस अयोटा इंटू sin 3π/4 का वैल्यू है 1/√2। अब ये 1/√2 अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो 1/√2 इंटू -1/√2 इज -1/2 माइनस अयोटा इंटू 1/2। हो गया, दैट्स इट। एट द मैक्सिमम it can be also written this way, -1 माइनस अयोटा बाय 2 भी हम इसको लिख सकते हैं। तो सी वी हैव एक्सप्रेस्ड
दिस गिवन रिप्रेजेंटेशन, ये जो हमें फॉर्म दिया था उसको हमने कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया. विद दिस वी हैव फिनिश्ड ऑफ विद द पोलर फॉर्म एंड द एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर. तो आज क्या सीखा हमने? बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीखी कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर में, पोलर को एक्सपोनेंशियल में. एक्सपोनेंशियल कैन बी कन्वर्टेड, one second, exponential can be converted to polar and polar can be converted to the complex number. They are interrelated, एक दूसरे से connected है. बट सबसे important हमें r और थीटा कैसे फाइंड करना है वो हमें आना चाहिए. एंड ट्रिग्नोमेट्री शुड बी नोन टू अस. तभी ये सारी चीजें समझ में आएंगी. ओके, नोट डाउन. देन वी विल स्टॉप फॉर टुडे. ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करेंगे. Now we'll move on to the next part of the topic when we meet next time. Okay, keep studying. Please keep watching my YouTube channel. Thank you very much.